بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سب کہیں گے چونکہ مجھے اس مسجد کی امامت نہیں ملی، اس لیے میں اس امام کو بدنام کر رہا ہوں۔ اب تو وہ بیچارہ قتل ہی ہو گیا ہے، اس لیے میں اچھا نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی الزام عائد کروں۔ میں نے مزید کریدنا شروع کر دیا۔ یہ سارے سوال اور ان کے جواب اور میری جرح لکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں دراصل یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ رانی کہاں ہے۔ میرے ذہن میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ مقتول اجمیری گیٹ میں جاتا ہے تو صرف رانی کے لیے ہی جاتا ہے۔ میں نے رانی کا سراغ لگانا تھا۔ میں پہلے امام مرحوم کے اس بیٹے سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اس نے مقتول کو عصمت فروشوں کے علاقے میں کس کس جگہ دیکھا ہے۔ اس نے مقتول کو 3 دفعہ وہاں دیکھا تھا۔ 2 دفعہ اس نے ایک ہی جگہ دیکھا۔ وہ ایک 3 منزلہ فلیٹ تھا جس میں عصمت فروش ہی آباد تھے اور اپنا کاروبار چلاتے تھے۔ میں نے یہ فلیٹ اپنے ذہن میں رکھ لیا۔ امام کے بیٹے کو فارغ کر دیا۔ اس پر ہمیں کوئی شک نہیں تھا۔ پہلے شک ہوا تھا، وہ اس پوچھ گچھ میں ختم ہو گیا۔ اس سے تو ہمیں بڑا ہی کارآمد سراغ مل گیا تھا۔ اسے فارغ کر کے میں نے سب انسپکٹر رضا کو اپنی ضرورت بتائی اور کہا کہ وہ اپنے اس بازار کے مخبروں کو بلا کر کہے کہ وہ معلوم کریں کہ اس فلیٹ میں رانی نام کی ایک نوجوان لڑکی چند مہینے ہی ہوئے آئی ہے یا لائی گئی ہے۔ میں نے رضا کو یہ بھی بتایا، یہ لڑکی امبالہ کی رہنے والی ہے اور دلی کے آشرم سے بھاگی ہے یا اسے کسی طرح دھوکے میں یہاں لایا گیا ہے۔ وہاں سے ہم اس تھانے میں چلے گئے جس کے تحت اجمیری گیٹ کا اندرونی علاقہ آتا تھا۔ اس تھانے کا SHO ایک ہندو سب انسپکٹر امرناتھ تھا۔ اسے بھی اپنی یہ ضرورت بتائی جو رضا کو بتائی تھی اور اسے کہا کہ وہ معلوم کر کے بتائے کہ رانی نام کی لڑکی اس فلیٹ میں ہے یا نہیں، یا وہ کہاں رہتی ہے۔ وہاں سے ہم اپنے ہیڈ کوارٹر میں چلے گئے اور اپنے خاص مخبر بلوائے۔ وہ بڑے تجربہ کار انفارمر تھے۔ وہ جب آئے تو انہیں بھی رانی کے متعلق تمام معلومات دے کر بھیجا۔ مقتول کے دل کی رانی۔ پولیس کے شعبہ CIA کو بڑے ہی زیادہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ تھانوں کے SHO وغیرہ CIA کے تفتیشی افسروں کے ساتھ جان لڑا کر تعاون کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہی تھانوں کے کیس CIA کے پاس جایا کرتے تھے اور متعلقہ SHO کی عزت اور بے عزتی CIA کے ہاتھ میں چلی جاتی تھی۔ وہ تو ہر طرح کوشش کرتے تھے کہ CIA کے تفتیشی افسروں کو خوش رکھیں۔ اگلے روز ہم اپنے آفس میں گئے تو تھوڑی ہی دیر بعد سب انسپکٹر رضا کا فون آ گیا۔ اس نے بتایا کہ رانی کا سراغ مل گیا ہے اور ہم جب چاہیں وہاں جانے کے لیے سب انسپکٹر رضا سے گائیڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس نے رپورٹ یہ دی کہ رانی آشرم سے خود ہی آئی تھی۔ اسے زبردستی یا دھوکے سے نہیں لایا گیا، بلکہ وہ خود آئی اور اب اس دنیا میں یعنی عصمت فروشوں کے بازار میں بہت ہی خوش ہے۔ اجمیری گیٹ کے علاقے کا ہندو SHO سب انسپکٹر امرناتھ خود ہی ہمارے پاس آ گیا۔ یہ اس کی برخورداری کا مظاہرہ تھا۔ اس نے بھی رانی کا سراغ لگا لیا تھا اور وہی رپورٹ دی جو سب انسپکٹر رضا نے دی تھی۔ چونکہ امرناتھ خود آیا تھا اس لیے اس نے بڑی لمبی رپورٹ دی اور ساتھ ہمیں خوش کرنے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بڑا ہی مشکل کام تھا جو اس نے کر دکھایا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ہم جس وقت بھی چھاپہ مارنا چاہیں وہ اپنا ایک ہیڈ کانسٹیبل گائیڈ کے طور پر ساتھ بھیج دے گا۔ میں نے اسے یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ہم آج دوپہر کھانے کے بعد اس کے تھانے آئیں گے اور پھر رانی کے ٹھکانے پر جائیں گے اور وہ اپنا ایک گائیڈ ہمارے لیے تیار رکھے۔ ہم اسی وقت جا سکتے تھے لیکن اس خیال سے نہ گئے کہ طوائفوں کا کاروبار ساری رات چلتا ہے اور دن کے وقت وہ سوتی ہیں۔ میں نے انسپکٹر کلاک سے مشورہ کیا کہ ابھی تو صبح ہے اور رانی بڑی گہری نیند سوئی ہوئی ہوگی، اسے کچھ دیر آرام کر لینے دیا جائے تاکہ وہ تر و تازہ ذہن کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کر سکے۔ میں نے تو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ رانی اور اس کے 1-2 آدمیوں کو CIA ہیڈ کوارٹر میں ہی بلا لیں، لیکن انسپکٹر کلاک نے ہنس کر کہا کہ چلو وہیں چلتے ہیں، اسی بہانے اس بازار کی سیر کر لیں گے۔ ہم دوپہر کے کھانے سے فارغ ہو کر 1:30 بجے کے لگ بھگ چل پڑے اور امرناتھ کے تھانے میں پہنچے۔ اس نے ہمارے لیے ایک ہیڈ کانسٹیبل تیار رکھا ہوا تھا۔ یہ ہیڈ کانسٹیبل ہمیں ہماری مطلوبہ جگہ لے گیا۔ فلیٹ کی دوسری منزل پر جا کر ہیڈ کانسٹیبل نے ایک دروازے پر دستک دی۔ دروازہ ایک ادھیڑ عمر آدمی نے کھولا۔ وہ ہیڈ کانسٹیبل کو وردی میں دیکھ کر گھبرا گیا۔
उसने एक अंग्रेज़ को देखा तो और ज़्यादा परेशान हुआ। अगर बावर्दी हेड कांस्टेबल साथ ना होता तो ये आदमी हमें अपना गाहक समझकर पुरतपाक इस्तकबाल करता। हेड कांस्टेबल ने उसे बताया कि ये दोनों साहब खुफिया पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और रानी का बयान लेना चाहते हैं। रानी? उस आदमी ने हैरत से कहा, यहाँ तो कोई रानी नहीं। हेड कांस्टेबल को यकीन था कि रानी यहाँ है। मुखबरों की रिपोर्टें गलत नहीं थीं। हेड कांस्टेबल ने इस आदमी की और कोई बात न सुनी। उसने उस शख्स को धक्का दिया और दरवाज़ा पूरा खोलकर हमें कहा, चलिए साहब। हम दोनों अंदर चले गए। ये खासा कुशादा कमरा था जिसकी ज़ेबाइश देखने वाली थी। एक तरफ फर्श पर गद्दा बिछा हुआ था और उस पर लंबी चौड़ी फूलदार चादर बिछी हुई थी। उस पर चंद एक गोल तकिए पड़े थे। दूसरी तरफ यानी आधे कमरे में सोफे भी पड़े हुए थे और एक खुशनुमा और बेशकीमत कालीन भी बिछा हुआ था। इससे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ प्राइवेट तवाइफें या कॉल गर्ल्स रिहायशी हैं और यहाँ कोठे पर बैठने वाली तवाइफें नहीं होती। रानी को फ़ौरन पेश करो, हेड कांस्टेबल ने कहा। हुजूर अनवर, उस आदमी ने हाथ जोड़कर कहा, अभी पेश करता हूँ, लेकिन एक गुजारिश सुन लें। इसे यहाँ ज़बरदस्ती नहीं लाया गया था। ये अपनी मर्ज़ी से आई थी। हम उसे या तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए। मैंने कहा, रानी से थोड़ा सा बयान लेना है, ज़्यादा बक बक नहीं करनी। इसे फ़ौरन लाओ, ऐसा ना हो कि इसे घसीट कर बाहर लाना पड़े। वो साथ वाले कमरे में चला गया और 3-4 मिनट बाद वापस आया तो उसके साथ एक नौजवान लड़की थी। उसने बताया कि ये है रानी। इंस्पेक्टर क्लार्क ने बेसाख्तगी से अंग्रेज़ी में कहा, ओह, ये तो मेरी तवक्को से ज़्यादा खूबसूरत है। रानी वाकई खूबसूरत लड़की थी। मुझे उसके नक्शो निगार के अलावा उसका कद काठ और जिस्मानी साख्त ज़्यादा अच्छी लगी। उसका हुस्न ये था कि उस वक्त वो अपने कुदरती रूप में थी। उसने वो मेकअप नहीं किया हुआ था जो तवाइफें रात के वक्त करती हैं और ना ही उसने बालों में कंघी की थी। वो कुदरती रंग रूप में हमारे सामने खड़ी थी। इंस्पेक्टर क्लार्क, मैंने अंग्रेज़ी में कहा, इस लड़की को देखकर क्या तुम हिंदुओं पर लानत नहीं भेजोगे? इस लड़की को इस बदबख्त कौम ने खुद इस्मत फरोश बनाया है। ये बेगैरत हिंदू ये सूरत कबूल कर लेते हैं कि इनकी एक बेवा लड़की इस्मत फरोशों के पास पहुंच जाए, मगर उसे शादी की इजाज़त नहीं देते। इसे मनहूस समझकर धुतकार देते हैं। ये लड़की मामूली से घराने की है, लेकिन कोई भी अपर क्लास का अमीर कबीर आदमी इसके साथ शादी करने में खुशी महसूस करेगा। ज़रा देखो ये इस उम्र में किस जहन्नम में आ पड़ी है। इंस्पेक्टर क्लार्क रानी को टिकटिकी बांधे देख रहा था। बैठ जाओ रानी, मैंने कहा, घबराओ मत, हम पुलिस के अफसर हैं, लेकिन तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आए, तुमसे कुछ पूछना है। वो डरते झिझकते हमारे साथ वाले सोफे पर बैठ गई। मैंने उसके आदमी से कहा कि वो यहाँ से चला जाए। हेड कांस्टेबल को भी मैंने कमरे से बाहर भेज दिया। आप मुझसे शायद ये पूछना चाहते हैं कि मैं यहाँ तक किस तरह पहुँची हूँ। रानी ने पुरएतमाद लहजे में कहा, यह मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ और इस जगह के सिवा मेरा कोई और ठिकाना नहीं था। मुझे तो ये तवक्को थी कि ये लड़की घबराहट की हालत में बात करेगी और हम कुछ पूछेंगे तो झींप और झिझक कर जवाब देगी, लेकिन उसने जब बात की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इस लड़की को अपने आप पर पूरा एतमाद है और अक्ल भी रखती है और बोलने की जुर्रत भी। नहीं रानी, मैंने कहा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं कि तुम यहाँ तक किस तरह पहुँची हो, या तुम्हें कोई अगवा करके लाया है या तुम खुद आई हो। हमारे पास तुम्हारी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट नहीं, ना तुम्हारे बाप को इसका कोई अफसोस है कि तुम लापता हो और ना ही आश्रम वालों को कोई दिलचस्पी है कि तुम कहाँ चली गई हो। आश्रम वालों ने तुम्हारे बाप को कभी की इतला भिजवा दी थी कि तुम आश्रम से लापता हो गई हो। हम किसी और सिलसिले में आए हैं और तुमसे तवक्को रखते हैं कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। झूठ क्यों बोलूँगी? उसने जुर्रतमंदाना लहजे में कहा, मुझे मेरे अपने बाप ने और हमारी कौम के रस्म व रिवाज ने और आश्रम के पंडितों ने यहाँ आ जाने पर मजबूर किया है। आप पूछें क्या पूछना है। मैंने मकतूल का नाम लेकर उससे पूछा कि वो यहाँ आता रहता है। रानी ने जवाब दिया कि वो 5-6 मरतबा यहाँ आ चुका है, लेकिन मैं आपकी एक गलत फहमी दूर कर देती हूँ। रानी ने कहा, वो यहाँ गाहक या तमाशबीन बनकर नहीं आता, वो मुझे मिलने आया करता है और मैं चाहती हूँ कि वो आता रहे। आप उसके मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? इस दुनिया में वो एक ही इंसान है जो मेरे दिल को अच्छा लगता है। अब वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा रानी। मैंने कहा, वो कत्ल हो गया है। रानी सूफे के साथ पीठ लगाए बैठी थी। मेरी बात सुनकर वो बिदकी और आगे को हो गई। उसकी आंखें और ज़्यादा खुल गईं, मुंह भी खुल गया,
लेकिन वो कुछ देर बोल ही ना सकी। वो ऐसी खबर सुनने के लिए तैयार न थी। क्या आप जावेद की बात कर रहे हैं? रानी ने पूछा और कहा, वो जावेद जो अंबाला से यहाँ आया है और एक मस्जिद में इमाम है। मकतूल का नाम जावेद था। मैंने रानी को बताया कि मैं उसी जावेद की बात कर रहा हूँ। अब जो वो रोई है, मैं और इंस्पेक्टर क्लार्क परेशान हो गए। पहले तो हम उसे सिसकते और फिर हिचकियाँ लेते देखते रहे। आखिर उसे बहलाने लगे और बहुत देर बाद उसने अपने आप पर काबू पाया। उससे हमने अंदाज़ा किया कि रानी को मकतूल के साथ कितनी शदीद और दिली मोहब्बत थी। रानी तो अब दौलतमंदों की चीज़ थी, उनके मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखता था, लेकिन रानी ने उसे अपने दिल में बसा रखा था। मैंने पहले अपनी किसी कहानी में लिखा था कि पुलिस के तफ्तीशी अफसरों को अपने मन मारने पड़ते हैं और अपने जज्बात को दबा कर रखना पड़ता है। बड़े बड़े दर्दनाक और वहशतनाक केस देखे हैं और अपने जज्बात को काबू में रखा था, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जो पत्थरों को भी रुला देते हैं। जावेद का कत्ल और रानी की उसके साथ मोहब्बत ऐसा ही एक केस था। मेरे जहन पर और मेरे मिजाज पर उसका बहुत ही बुरा असर हुआ। एक आदमी हमारे सामने विस्की और सोडा और खाने पीने की कई अशिया रख गया था। मैं विस्की पीने वाला आदमी नहीं था। इंस्पेक्टर क्लार्क ने थोड़ी सी विस्की अपने लिए डाल ली और मैंने 2-3 तिक्के ये पूछकर खा लिए कि ये हलाल गोश्त के हैं। उस रोज़ मूड बहुत ही बिगड़ा, लेकिन ड्यूटी ऐसी थी कि अपने आप को नॉर्मल हालत में रखना पड़ा। रानी का रद्द-ए-अमल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे किसने कत्ल किया है? रानी ने सिसकते हुए पूछा। कत्ल किया ही क्यों है? वो तो बड़ा ही प्यारा आदमी था। हम उसके कातिल की तलाश में आए हैं। मैंने कहा, ये बताओ कि वो जब तुम्हारे पास यहाँ आया करता था तो क्या तुम्हारे ये आदमी या मालिक एतराज़ करते थे? बिल्कुल नहीं, रानी ने जवाब दिया। मैंने उन्हें बता दिया था कि इसे गाहक न समझें और इसके साथ मेरा ऐसा वैसा ताल्लुक़ नहीं। इसके साथ मेरी मोहब्बत है और जब तक ये आता रहेगा मैं हंसी खुशी इस कारोबार में लगी रहूँगी। वो दिन के वक्त आया करता था और मेरे आदमी यहाँ मौजूद रहते थे। ये शक दिल से निकाल दें कि उसके यहाँ आने पर किसी को एतराज़ था। जावेद ने मरते वक्त तुम्हारा नाम लिया था। मैंने कहा। उसने कहा था कि रानी को मालूम है। उसके बाद वो कुछ ना कह सका और फौत हो गया। ये बात सुनकर रानी ने फिर पहले की तरह बेकाबू होकर रोना शुरू कर दिया। मैंने उसे बहला लिया और कहा कि वो अपने आप पर काबू रखकर हमारे साथ ताउन करे ताकि हम कातिल तक पहुंच जाएं। मैंने उसे ये भी बताया कि हम अंबाला तक हो आए हैं और वहां मकतूल के दोस्त लियाकत अली से भी मिले हैं। मकतूल के घर भी गए थे और रानी को ये भी बताया कि उसके बाप के साथ भी मुलाकात कर आए हैं और उसके बाप ने ही हमें बताया था कि रानी को आश्रम में दाखिल करा दिया गया है। मैंने रानी को ये भी बताया कि उसके बाप ने ही हमें बता दिया था कि रानी आश्रम से गायब हो गई है। उसके बाद रानी के साथ बहुत बातें हुई और उसने भी बहुत बातें की और इस तरह हमारी बातचीत एक सही रास्ते पर आ गई। ये सारी की सारी बातें लिखना कोई ज़रूरी नहीं। मैं यहाँ कहानी मुकम्मल करना चाहता हूँ और उसके लिए इंतहाई ज़रूरी बातें पेश कर रहा हूँ। रानी ने कुछ नए इंकशाफात किए जिनसे हमारा मसला हल हो गया। उसने सबसे पहले अपने मुतालिक बयान दिया और कहा कि वो अपने मुतालिक इसलिए सब कुछ बताना चाहती है कि हमें ये शक ना रहे कि उसके साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है और इस्मत फरोशों के जाल में फेंक दिया गया है। वो तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि वो शादी के पहले 1 साल बाद ही बेवा हो गई थी। उसे माँ बाप ने घर में कैद कर लिया और सहेलियों ने भी उसके साथ बोलचाल और मेल मुलाकात बंद कर दी। 2-2.5 साल तो उसने सब्र किए रखा, लेकिन एक रोज़ वो यकलख्त बागी हो गई और उसने एक दोस्त बना लिया। मैं ये भी सुना चुका हूँ कि उसने कितने दोस्त बनाए और फिर मकतूल जावेद के साथ उसकी मुलाकात हो गई। रानी ने मकतूल के मर्दाना हुस्न और वर्जिशी जिस्म से मुतासिर होकर उसके साथ दोस्ती लगाई थी, लेकिन मकतूल ने पहले रोज़ ही उसे ये अल्फाज कहे कि हर इंसान हैवान और जानवर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। मकतूल ने इसे ये भी कहा कि इंसान की असल ज़रूरत रूहानी प्यार और मोहब्बत है। उसने रानी को ये भी समझाया कि इसके दोस्तों की दिलचस्पी उसके जिस्म के साथ है और वो उसे हर जगह बदनाम करते फिर रहे हैं। मुख्तसर बात यह हुई कि मकतूल ने रानी को सच्चे प्यार से रोशनास कराया। तब रानी ने उसे बताया कि हिंदुओं में तो ये एक किस्म का रिवाज है और शायद वो इसे मजहबी फरीज़ा समझते हैं कि औरत को जानवर या ग़ुलाम समझना है और इसे ज़रा सी भी अहमियत नहीं देनी।
रानी को जब मकतूल ने रूहानी मोहब्बत दी तो उसे पता चला कि वो क्या तशन्नगी महसूस कर रही थी, जिसकी तस्कीन यके बाद दीगरे उसके 3 दोस्त भी नहीं कर सके। रानी के दिल में मकतूल का ऐसा प्यार पैदा हुआ कि वो उसके बगैर तड़पने लगती थी। उसने दोस्तियां तर्क कर दी और रूहानी तौर पर मकतूल की होकर रह गई। रानी ने बताया कि मकतूल ने कहा था कि वो उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी करेगा। मकतूल ने उसके साथ ऐसा धोखा नहीं किया था कि उसकी अभी शादी ही नहीं हुई, बल्कि उसे बता दिया था कि उसकी बीवी है जो उसे पसंद नहीं और वो उसे तलाक दे देगा। रानी ने मकतूल की ये तजवीज़ दिलो जान से कबूल कर ली थी और उसके साथ कहीं भाग जाने को भी तैयार थी, लेकिन मकतूल का कोई बाहर का ठिकाना नहीं था जहां वो रानी को लेकर चला जाता। वो तो चाहता था कि वो अम्बाला में ही रहेगा और रानी को मुसलमान करके शादी कर लेगा, लेकिन रानी ने उसे कहा था कि उसने ऐसा किया तो हिंदू उसे कत्ल कर देंगे और हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाएगा। मकतूल और रानी की मुलाकातें पहले से ज़्यादा होने लगीं और हिंदुओं को पता चल गया। बाप ने रानी को रोकना शुरू कर दिया, लेकिन रानी बागी हो चुकी थी। भाइयों ने रानी को मारा पीटा भी, लेकिन रानी बाज ना आई। वो यहाँ तक दिलेर हो गई थी कि मकतूल ने उसे अगर कहा कि आज रात फलां वक्त फलां जगह आ जाना, तो रानी घर वालों को सोता छोड़कर घर से निकल आई और मकतूल के पास पहुँच गई और वहाँ से उस वक्त वापस आई जब मकतूल ने उसे कहा कि जाओ रानी, अब चली जाओ। रानी बार बार मुझे कहती थी कि वो हैरान है कि आधी रात के वक्त तन्हाई में बैठे हुए और दोनों के जिस्म एक दूसरे के साथ लगे हुए होते, लेकिन मकतूल ने कभी कोई बेहुदा हरकत नहीं की थी। जासूसों का गिरोह और रानी। एक रोज़ रानी के दोनों बड़े भाइयों ने दिल्ली सैर सपाटे के लिए जाने का प्रोग्राम बनाया। रानी के बाप ने अपने इन बेटों से कहा कि रानी को भी साथ ले जाओ, ये बेचारी बहुत परेशान है और घर में कैद रहती है, इसे भी सैर सपाटा करा लाओ। रानी बहुत हैरान हुई और खुश भी कि बाप ने एक बात तो ऐसी की है जो उसके दिल को अच्छी लगी थी। वो समझ ना सकी कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। भाई हंसी खुशी रानी को अपने साथ ले गए। दिल्ली जाकर वो आश्रम में गए और रानी को आश्रम के अंदर भेजकर भाई वहाँ से चले आए। 1-2 दिनों बाद रानी के कपड़े और बिस्तर वगैरह भी अम्बाला से लाकर दिल्ली आश्रम में दे दिया। तब रानी को पता चला कि बाप और भाइयों के दिलों में उसका प्यार क्यों जागा था। ये हैं हिंदू जो अपनी सगी बेटी को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। रानी को मकतूल जैसा मुसलमान नौजवान क्यों अच्छा न लगता। रानी ने यह भी बयान किया कि वो आश्रम में किस तरह रोई और तड़पी और वहाँ की औरतों और उसकी हम उम्र लड़कियों ने किस तरह उसे बहलाया। आश्रम में 3-4 पुरानी उम्र की औरतें मुलाजिम थीं और वो इन बेवा औरतों की देखभाल करती थीं। इन औरतों ने भी रानी को बहला फुसला लिया, लेकिन रानी ने बताया कि इन औरतों की नीयत ठीक मालूम नहीं होती थी। मसलन एक मुलाजिम औरत ने उसे कहा कि तुम्हें मुस्तकिल खामद तो नहीं मिल सकता, लेकिन यहाँ तुम खामदों की कमी महसूस नहीं करोगी, एक से एक अच्छा खामद मिलेगा और ऐश करोगी। रानी का सबसे पहला आर्जी खामद उसका आश्रम का इंचार्ज था, जो पिंडत था, यानी हिंदुओं का मजहबी पेशवा। ये था वो पिंडत जो दावा करता था कि आश्रम में बेवा औरतों और नौजवान लड़कियों को मज़हब के रंग में इतना ज़्यादा रंग दिया जाता है कि वो दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ लेती हैं और उनके मन सुखी हो जाते हैं। रानी ने बताया कि इस मजहबी पेशवा की आश्रम में ये पोजीशन थी जैसे आश्रम की तमाम नौजवान लड़कियां और जवान औरतें इसकी बीवियां हों। उसके बाद बाकी 2 पिंडतों की बारी आई। यही पिंडत इन बेवगान को सुबह मंदिर में प्रार्थना कराया करते थे। अगर मेरा मौजूए सुखन सिर्फ आश्रम होता तो मैं आपको बड़ी ही शर्मनाक, अफसोसनाक और जज्बात में जल्जले बपा कर देने वाली बातें सुनाता। मैं एक वारदात की तफ्तीशी कहानी सुना रहा हूँ, इसलिए इसी पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखूँगा। एक बात कह देता हूँ कि बेवा औरतों को सिर्फ आश्रमों में ही दाखिल नहीं किया जाता था, बल्कि दरिया गंगा के किनारे हिंदुओं के जो मुक़द्दस मकामात हैं, बाज़ वालिदैन अपनी बेटियों को इन मकामात के मंदिरों में छोड़ आते हैं। इनमें बनारस ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। वहाँ सबसे ज़्यादा बेवा औरतें रखी जाती हैं। इनके लिए अलग एक बहुत कुशादा कमरा है। ये बेचारी किस्मत की मारी वहाँ घूंघट निकाले बैठी रहती हैं और फिर लंगर से खाना लेकर खाती और सो जाती हैं, लेकिन वो कम सोती हैं। ये इनकी किस्मत है जो बड़ी गहरी नींद सो गई है। इन बेवगान के साथ भी वहाँ के पिंडत यही सलूक करते हैं जो मैं उस आश्रम का
बयान कर रहा हूँ। पिंडत जो इन औरतों से इस्मत फरोशी भी कराते हैं और पैसे कमाते हैं। रानी ने बताया कि चंद ही दिनों बाद उसे एक कमरे में भेजा गया जिसमें पलंग पड़ा हुआ था और उस पलंग पर एक तमाशबीन गाहक बैठा हुआ था। रानी को उसके हवाले कर दिया गया। उस रात से रानी की हैसियत आश्रम की दूसरी लड़कियों की तरह तवाइफ जैसी हो गई। अगले चंद दिनों में उसे ऐसे 4 और गाहकों के हवाले किया गया, लेकिन उसे एक पैसा भी न दिया गया। आश्रम की वो मुलाजिम औरत जिसने पहले रोज़ कहा था कि यहाँ एक से एक अच्छा खामन मिलेगा, लेकिन मुस्तकिल खामन नहीं मिल सकता, रानी की हमदर्द बन गई। उसने एक रोज़ रानी से कहा कि तुम्हें इस्मत फरोश बना दिया गया है, लेकिन इसकी तुम्हें उजरत नहीं मिलती। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा सकती हूं जहां तुम शहजादियों की तरह रहोगी और तुम्हारे कदमों में दौलत के ढेर लगेंगे। मतलब ये कि ये औरत रानी को वहां से भगाकर अजमेरी गेट पहुंचाना चाहती थी, और जाहिर है उसका राब्ता वहां के इस्मत फरोशों या बुर्दा फरोशों के साथ होगा, और उनसे इस औरत ने रानी की कीमत वसूल करनी थी। ये मुलाजमा कोई बड़ी ही चालाक और अय्यार औरत थी। उसने रानी को ऐसे सब्ज बाग दिखाए कि रानी तैयार हो गई। मेरी हालत पर गौर करें साहब, रानी ने हमें आश्रम की बातें सुनाते हुए कहा। माँ बाप के घर में मुझे अछूत बनाकर रखा गया और ये मेरे दिल से ही निकाल दिया गया कि मैं इंसान हूँ और जवान हूँ और मेरी फितरत के कुछ मुतालबात हैं और मैं एक घर आबाद कर सकती हूँ। मैंने अपने जज्बात की आग को सर्द करने का खुद ही बंदोबस्त कर लिया। बेशक मेरे भाई मुझे धोखे में आश्रम फेंक गए थे। अगर यहाँ पूरे खुलूस और नेक नियति से मुझे परमात्मा के कदमों में डाल दिया जाता तो मैं अपने आप को और इस दुनिया को भूल जाती, लेकिन वहाँ मेरी इस्मत फ़रोख्त होने लगी और मुझे तवाइफ बना दिया गया। मैं इतनी बुद्धू नहीं थी कि इस औरत की बातों में आ जाती। मैंने उसकी बातें सुनकर खुद ये सोचा कि मेरी किस्मत में पाप ही लिख दिए गए हैं, तो मैं इन दीवारों में कैद होकर ये पाप क्यों करूं? क्यों ना मैं बाहर निकलकर यही काम करूं और कुछ कमाऊं और आज़ादी से घूमूं फिरूं। एक रात इस औरत ने बड़ी उस्तादी से मुझे आश्रम से निकाला। आश्रम से कुछ दूर एक तांगा खड़ा था। मुझे इसमें बिठाया और मैं पूरे इत्मीनान के साथ यहाँ पहुँच गई। अफसोस होता है और बहुत ही दुख होता है कि मेरी जगह एक घर में थी, लेकिन इस घर से मुझे महरूम किया गया और मैं कहाँ आन पहुँची। लेकिन मैंने दिल को तसल्ली दे ली कि यही मेरी किस्मत है, तो इससे पूरा लुत्फ़ उठाऊं। मैं पूरा लुत्फ़ उठा रही हूँ। यहाँ सिर्फ वो गाहक आते हैं जिनके पास दौलत होती है। मैं इनके दिलों पर हुकूमत करती हूँ। ये 2-3 आदमी जिन्होंने मुझे ख़रीदा था मुझ पर इतना एतमाद करते हैं कि मैं अकेली बाहर चली जाती हूँ तो इन्हें पूरा यकीन होता है कि मैं वापस आ जाऊँगी। मेरे कपड़े देखें, मेरे जेवरात देखें, मैं हर तरह मुतमईन हूँ। क्या जावेद ने तुम्हें कभी कहा नहीं कि इस पेशे से निकल आओ और वो तुम्हारे साथ शादी कर लेगा? मैंने पूछा। उसने कहा था, रानी ने जवाब दिया। मैंने उसे साफ अल्फाज में कह दिया था कि अब नहीं। मैंने ये भी कहा था कि मैं इस कदर नापाक हो चुकी हूँ कि तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैंने उसे कहा था कि मेरे पास आते रहना, तुम्हें देखती हूँ तो ज़िंदा रहने की ख्वाहिश मजबूत हो जाती है। उसे हिचकी सी आई और वो ज़ारो कतार रोने लगी। 1-2 मिनट बाद वो संभल गई। मैं उसे जावेद के कत्ल पर ले आया। मैं आपको जावेद की प्राइवेट ज़िंदगी का एक पोशीदा गोशा दिखा देती हूँ, रानी ने कहा। हो सकता है आपको उससे कातिल का सुराग मिल जाए। जावेद अपनी बात मुझसे छुपाता नहीं था। जावेद का ये दोस्त लियाकत अली बड़ा ही गहरा और काया आदमी है। जावेद ने मुझे बताया था कि लियाकत अली जापानियों का जासूस है। उसने ये नहीं बताया कि वो जासूसी किस तरह करता है और उसका ये काम कैसा है। मैंने पूछा भी नहीं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि कौन क्या है और क्या करता है। दुनिया और दुनिया के बंदों से दिल ही उचाट हो गया था। मैंने उस वक्त दिलचस्पी पैदा की जब एक रोज़ जावेद ने मुझे बताया कि वो ठेकेदार की मुलाजमत छोड़कर जापानियों का बाकायदा जासूस बन गया है और लियाकत अली ने उसे अपने ग्रोह में शामिल कर लिया है। मैंने जावेद से सिर्फ एक बात कही कि ऐसा ना हो कि वो पकड़ा जाए। अगर पकड़ा गया तो उसे बड़ी लंबी कैद की सज़ा मिलेगी और कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज़ उसे गोली ही मार दें। लेकिन जावेद ने बताया कि उसका काम ऐसा है जिसमें पकड़े जाने का ख़तरा ना होने के बराबर है। उसने ये भी बताया कि उसे ठेकेदार की नौकरी से 3-4 गुना ज़्यादा पैसे मिलते हैं।
उसके साथ ही मैं देख रही थी कि जावेद कुछ ज़्यादा ही मजहबी होता जा रहा था। मैं तो उसके प्यार को और उसकी मोहब्बत को देखती थी और यही मेरी रूह की ज़रूरत थी। मेरे साथ जावेद पूरी वफा कर रहा था। वक्त गुजरता गया। एक दिन जावेद ने मुझे बताया कि उसने जासूसी का काम छोड़ दिया है, लेकिन लियाकत अली उसे छोड़ने नहीं दे रहा था। मैंने भी उसे कहा, यह काम बड़ा ख़तरनाक है, बेहतर है कि इस ग्रोह से अलग हो जाओ। वो अलग हो गया था, लेकिन मुझे बताता था कि लियाकत अली उसे धमकियां दे रहा है कि वो उसके ग्रोह से निकला तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। जावेद ज़रा सा भी डरा हुआ नहीं था। वो अब इस्लाम और जिहाद की बातें करने लगा था। पहले तो वो कहता था कि जापान की फ़ौजें बर्मा तक पहुंच गई हैं और अब हिंदुस्तान पर हमला करके अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगी और फिर हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगी। लेकिन बाद में उसने ये कहना शुरू कर दिया कि ये हिंदुस्तान मुसलमानों का मुल्क है और मुसलमान अपने अंदर जिहाद का जज्बा पैदा करेंगे तो ये मुल्क फिर मुसलमानों को मिल जाएगा। हकीकत ये है कि इसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी होती थी। वजह आपको बता चुकी हूँ। हिंदू होते हुए मेरे दिल में हिंदुओं की नफ़रत भर गई थी और मुसलमानों की मोहब्बत मेरी रूह में उतर गई थी। ये मकतूल की मोहब्बत का और खुलूस का असर था। मैं समझती थी कि हर मुसलमान का किरदार जावेद जैसा ही होता है। मैं यहाँ कहूँगी कि मेरी सारी दिलचस्पियों का मरकज़ जावेद की ज़ात थी। एक रात जावेद से मुलाकात हुई तो वो कुछ परेशान था। उसने बताया कि उसके पास लियाकत अली के और उसके ग्रोह के कुछ राज हैं और उसने इन सब को यकीन दिलाया है कि वो इनके ग्रोह से अलग तो हो रहा है, लेकिन इन्हें ऐसा धोखा नहीं देगा कि उनके राज किसी को बता दे। लियाकत अली उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। वो जावेद से कहता था कि वो अलग हुआ तो जिंदा नहीं रहेगा। क्या जावेद ने यह बताया था कि वो राज क्या है? इंस्पेक्टर क्लार्क ने पूछा। नहीं साहब, रानी ने जवाब दिया। ना उसने बताया ना मैंने पूछा। मैंने उसे कहा था कि ऐसा खतरा है तो चलो यहाँ से कहीं भाग चलते हैं और किसी को पता ही नहीं चलने देंगे कि हम कहाँ हैं। इस मुलाकात में जावेद ने एक और बात बताई। बात यह थी कि लियाकत अली ने उसे कहा था कि रानी को भी अपने ग्रोह में शामिल कर लो तो फिर हम बहुत ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं। मैं जानती थी कि जासूसी में खूबसूरत लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता है। लियाकत अली ने मुझे कई बार देखा था। जावेद ने उसे ये जवाब दिया था कि वो रानी को किसी कीमत पर इस लाइन पर नहीं चलने देगा। उसके इस जवाब से लियाकत अली उसके साथ बहुत बिगड़ा था और लियाकत अली ने यह कहा था कि तुम रानी को ग्रोह में लाने की बजाय खुद भी ग्रोह से निकल रहे हो तो इसका अंजाम यही होगा कि तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। रानी की ये बात सुनकर मुझे वो ख़त याद आया जो लियाकत अली ने अम्बाला से मकतूल को दिल्ली लिखा था। उसने लिखा था कि तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने इंस्पेक्टर क्लार्क से अंग्रेज़ी में कहा कि हमारा मुलज़िम हमें मिल गया है। उसके बाद मैंने जावेद को परेशान ही देखा, रानी ने कहा, और उसके बाद किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि मेरे भाई मुझे आश्रम में फेंक आए और कुछ पता नहीं कि पीछे जावेद का क्या बना। एक रोज़ मैं बाहर निकली तो अजमेरी गेट के बाहर मैंने जावेद को देखा। तांगा रुकवाकर मैं दौड़कर उसके पीछे गई और उसे पकड़ लिया। मेरे साथ यही आदमी था जो साथ वाले कमरे में बैठा हुआ है। जावेद को मैंने तांगे में बिठा लिया और उस आदमी को बताया कि जावेद कौन है और मेरे लिए क्या हैसियत रखता है। खैर, इन बातों को जाने दें। हुआ यह कि जावेद मुझे यहाँ आकर मिलता रहा। उसने मुझे बताया कि एक तो वो मेरी गुमशुदगी से परेशान हो गया था और अम्बाला उसे उजाड़ और बेआबान लगने लगा था, और दूसरी वजह यह हुई कि लियाकत अली की धमकियां बढ़ गई थीं और उसने जावेद से कहा था कि हाँ या ना में जवाब दो और फिर उसका नतीजा देखो। चंद बार मिलने के बाद जावेद कई रोज़ ना आया तो मैं परेशान हो गई। उसने मुझे बताया था कि वो एक मस्जिद में इमामत करता है, लेकिन सही जगह नहीं बताई थी। आज आपसे पता चला है कि वो तो इस दुनिया से ही मुंह मोड़ गया है। ये गौर करना आपका काम है कि कहीं लियाकत अली ने ही तो जावेद को कत्ल ना करवा दिया हो। मरते हो तो मर जाओ। रानी के साथ हमारी कितनी बातें हुई और उसने कितनी बातें की, इसका अंदाज़ा इससे लगाएं कि हम 1:30-2 बजे इसके यहाँ पहुँचे थे और जब वहाँ से उठे थे तो उस वक्त सूरज गुरूब होने को था। हमने उसी वक्त रेलवे स्टेशन जाकर अगले रोज़ की एक एक्सप्रेस गाड़ी की 2 सेकंड क्लास की सीटें अम्बाला के लिए बुक करवा ली। अगली शाम हम अम्बाला में थे। रेलवे स्टेशन से हम सीधे लियाकत अली के घर पहुँचे और इत्तेफाक से वो घर ही मिल गया। हमारा इस्तकबाल उसने बड़े तपाक से किया और पूछा कि जावेद के कातिल का कोई सुराग मिला है या नहीं। मैंने जवाब दिया
کہ بڑا پکا سراغ مل گیا ہے اور اس کے ساتھ ذرا تبادلہ خیالات کرنا ہے، اس لیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ وہ اندر جانا چاہتا تھا لیکن ہم نے اسے اندر نہ جانے دیا اور بازو سے پکڑ کر دوستانہ بے تکلفی کا مظاہرہ کیا اور اسے سڑک پر لا کر تانگے میں بٹھا لیا۔ ہم امبالہ کے CIA ہیڈ کوارٹر میں جا رہے تھے۔ لیاقت علی کو بہلائے رکھنے کے لیے ہم اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں باتیں کرتے گئے۔ CIA ہیڈ کوارٹر میں جا کر ہم نے اپنی آمد کی اطلاع دی اور یہ بھی بتایا کہ ایک ملزم سے تفتیش کرنی ہے۔ شام گہری ہو گئی تھی۔ متعلقہ آفیسر کو اس کے گھر اطلاع دی گئی۔ اس انگریز DSP نے ضروری حکم جاری کر دیا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے کھانے کا بندوبست بھی کر دیا، جو ہمیں آفس میں ہی پہنچا دیا گیا۔ وہاں رات کو ڈیوٹی پر جو سٹاف تھا اس سے ہمیں پورا تعاون ملا۔ ہمیں ایک کمرہ دکھایا گیا جہاں ہم نے تفتیش کرنی تھی۔ ہم اس کمرے میں جا بیٹھے۔ لیاقت بھائی، میں نے کہا، تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، بہتر ہے اپنے اوپر سے پردہ اٹھا دو، ہمیں گمراہ نہیں کر سکو گے۔ ہم پوری شہادت لے کر آئے ہیں، تمہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو اقبالی بیان دے دو۔ جیسا کہ ہر ملزم کرتا ہے، لیاقت علی نے بھی حیرت سے ہمیں دیکھا اور ایسی ایکٹنگ کی جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں یا وہ ہماری بات ہی نہ سمجھ سکا ہو۔ میں نے اسے کہا کہ ہم اسے سوچنے کے لیے کوئی وقت نہیں دیں گے۔ وہ بولنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم جاوید کے قاتل ہو۔ انسپکٹر کلارک نے اپنا منہ اس کے منہ کے قریب کر کے کہا، تم جاپان کے جاسوس ہو، بولو ہاں، بولو نہیں۔ وہ بہت ہی چالاک آدمی ہوگا، لیکن پولیس کے اڈے پہلی بار چڑھا تھا۔ میں جب مختلف تھانوں میں SHO رہا تھا تو میرا اصول تھا کہ ملزم سے تشدد کے بغیر اقبالی بیان لے لوں، اور میں لے بھی لیا کرتا تھا۔ میں تشدد اور ایذا رسانی کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، لیکن CIA میں اس کے بغیر گزارا مشکل تھا۔ لیاقت علی الزام سے انکار کرتا رہا۔ ہم ابھی اسے یہ نہیں بتانا چاہتے تھے کہ ہمیں اس کے خلاف شہادت کہاں سے ملی ہے۔ وہ غالباً یہی سوچ رہا تھا کہ ہم لوگ اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں اور ہمیں کس نے اس کے گھر کا راستہ دکھایا ہے۔ وہ ابھی تک انکار پر قائم تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ انسپکٹر کلارک اٹھ کر اس کی کرسی کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور کرسی کی پیٹھ پکڑ کر زور سے پیچھے اور نیچے کو دبائی تو کرسی کی پیٹھ فرش سے جا لگی۔ مجھے یہ طریقہ معلوم تھا۔ میں فوراً اٹھا اور فرش پر گری ہوئی کرسی تک پہنچا۔ لیاقت کی اب یہ پوزیشن تھی کہ اس کی پیٹھ کرسی کے ساتھ لگی ہوئی اور کرسی کی پیٹھ فرش پر تھی۔ اس کے پاؤں فرش سے اٹھ گئے تھے۔ میں نے اس کے ٹخنوں سے ٹانگیں پکڑیں اور نیچے کو دبائیں۔ انسپکٹر کلارک کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو اس نے لیاقت کے منہ میں اس طرح دے دی تھی کہ چھڑی اس کے کندھوں سے متوازی تھی، یعنی اس کے ہونٹوں اور دانتوں میں درمیان سے چھڑی دے رکھی تھی اور دونوں سرے دائیں بائیں تھے۔ انسپکٹر کلارک نے چھڑی کے دونوں سروں پر اپنے پاؤں رکھے اور چھڑی کو دبایا۔ چھڑی لیاقت کے ہونٹوں کے کونوں کو دبانے لگی۔ ادھر میں نے اس کے پاؤں نیچے کو دبا رکھے تھے۔ بکرا ذبح ہوتے وقت کیا تڑپتا ہوگا؟ تڑپنا تو لیاقت کا دیکھنے والا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے ہونٹ کونوں سے پھٹ رہے ہیں، اور میں جس طرح اس کے ٹخنوں پر دباؤ ڈال رہا تھا اس کی اذیت الگ تھی۔ ہم نے پورے 5 منٹ اسے اس اذیت میں رکھا۔ یہ 5 منٹ اس کے لیے 5 گھنٹے تھے۔ وہ تڑپ رہا تھا، لیکن دانتوں میں دبائی ہوئی چھڑی اسے بولنے نہیں دے رہی تھی۔ آخر چھڑی انسپکٹر کلارک نے نکال لی اور میں نے اس کے پاؤں چھوڑ دیے۔ اس کی ٹانگیں اوپر کو ہو گئیں۔ انسپکٹر کلارک نے اس کی ٹانگیں اور پیچھے کی تو لیاقت کلابازی کھا کر فرش پر جا پڑا۔ پھر انسپکٹر کلارک نے اسے بالوں سے پکڑا اور کھڑا کر لیا۔ میں نے اس کے پیٹ میں گھونسا مارا۔ انسپکٹر کلارک نے اس کے بال چھوڑ دیے۔ لیاقت پیٹ پر ہاتھ رکھ کر جھک گیا۔ اب میں نے اس کے بال مٹھی میں لیے اور جھٹکا دے کر سیدھا کیا اور پھر زور سے دیوار کی طرف جھٹکا دے کر بال چھوڑ دیے تو وہ دیوار کے ساتھ لگا اور گر پڑا۔ یہ بسم اللہ ہے بچے، میں نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ جب تک بولو گے نہیں یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ مرتے ہو تو مر جاؤ، تمہاری لاش غائب کر دی جائے گی۔ آدمی کچھ سخت جان ثابت ہوا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اقبالی بیان دے دیا تو سزائے موت ملے گی۔ بہرحال رات بھر نہ ہم سوئے نہ اسے سونے دیا۔ اظہار آسانی کے 2-4 طریقے آزمائے۔ میرا ضمیر مطمئن تھا کہ ہم محض شک پر اس کا یہ حال نہیں کر رہے تھے۔ ہمیں یقین تھا کہ جاوید کا قاتل یہ خود ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی تھا یا اس نے اپنے گروہ کے 2 آدمیوں سے جاوید کو قتل کروایا ہے۔ دلی میں ہمارے پاس اس قاتل کی انگلیوں اور ہتھیلیوں کے نشان محفوظ تھے جو سب انسپکٹر رضا نے
خون آلود چاقو سے لیے تھے۔ صبح طلوع ہوئی تو لیاقت علی کی برداشت جواب دے گئی اور اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ بات رانی کی ہی صحیح نکلی۔ جاوید اس کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا، لیکن گروہ سے نکل گیا اور اس کے ساتھ بڑے نازک راز بھی نکل گئے۔ راز نہ بھی ہوتے تو جاوید ان کے لیے صرف اس لیے خطرناک ہو سکتا تھا کہ لیاقت علی اور اس کے گروہ یعنی رنگ کے 3-4 آدمیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ جاوید مقتول دلی چلا گیا ہے تو کوئی بھروسہ نہیں کس وقت کہیں پردہ فاش کر دے۔ اسے قتل کرنے کے لیے 2 آدمی گئے۔ لیاقت علی نے دونوں کے ایڈریس بتا دیے۔ میں اور انسپکٹر کلاک CIA سے پولیس کے کچھ آدمی ساتھ لے کر ان دونوں پتوں پر چھاپا مارنے چلے گئے۔ دونوں کو گھروں میں ہی پکڑ لیا۔ پہلا جو آدمی پکڑا وہ جاوید کی ہی عمر کا تھا۔ اس کے گال پر ہلکی سی ایک لکیر تھی جو مدھم ہو گئی تھی۔ انسپکٹر کلاک نے یہ لکیر دیکھی تو وہ ہنس پڑا۔ یہ لکیر اس سکول ماسٹر کے بیت کی ڈالی ہوئی تھی جو جاوید کے قتل کا عینی شاہد تھا۔ کوئی شک نہ رہا کہ یہ قاتل ہے۔ دوسرے گھر سے جو آدمی پکڑا وہ بھی جوان سال تھا۔ اس کی پیٹھ سے قمیض ہٹائی تو وہاں 2 لکیریں تھیں جو مدھم ہو گئی تھیں۔ یہ بھی سکول ماسٹر کے بیت کی تھیں۔ ان دونوں کے گھروں کی اور لیاقت علی کے گھر کی بھی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے گھروں سے ایک ایک ریوالور بلا لائسنس برآمد ہوا۔ ان دونوں آدمیوں نے بھی اقبالی بیان دے دیے۔ ان میں سے ایک کا چاقو مسجد میں رہ گیا تھا جو ہمارے قبضے میں تھا۔ دوسرے نے اپنا آلہ قتل یعنی چاقو برآمد کرا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے رنگ لیڈر کے حکم سے جاوید کو قتل کرنے گئے تھے۔ دلی کا ایڈریس جس پر جاوید رہتا تھا لیاقت علی نے انہیں دیا تھا۔ انہوں نے فجر کی اذان کا وقت واردات کے لیے موزوں سمجھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس وقت مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہوتا اور امام اذان دینے جاتا ہے۔ انہیں ہم دلی لے گئے۔ اس کے بعد ہم نے جو کارروائیاں کی وہ مقدمہ تیار کرنے اور چالان پیش کرنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان تینوں کی انگلیوں کے نشان لیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک کی انگلیوں کے نشان ماہرین کی رپورٹ کے مطابق چاقو سے لیے ہوئے نشانات سے مل گئے۔ ان دونوں کو سزائے موت اور لیاقت علی کو عمر قید دی گئی۔